नमस्कार दोस्तों, as committed in my previous video, today we are going to discuss on salary structure and all components of the salary, mainly CTC, gross salary and net salary. For better understanding of CTC, gross salary, let us have look at one example. Our CTC come in this format, like this only. It looks like a gift hamper, but when we go for the gross salary will look like this. And after that, whatever we receive, that is cash in hand, will look like this, right? So this is how our salary structure will be there. For better understanding, first we look at the salary structure, which look like this. In salary structure, all components are included. Those components mainly comprise of basic pay, DA, but here dearness allowance is only applicable for the public sector or government sector. It is not applicable for the private sector, right? After that, other components include different allowances like special allowance, child education allowance, medical allowances and convey allowance, all allowances. Apart from this, salary structure include gratuity, bonus and some deduction parts. In deduction parts, mainly professional tax, provident fund, ESIC, all those components. So let us begin with the structure one by one. First, look at the CTC. What CTC mean? What is the meaning of CTC? CTC is cost to company. So in the CTC, each and every component of salary structure will be included, like basic salary, DA, HRA, other allowances, books and periodics, car allowances, PF, LTA, leave traveling allowance, bonus, incentives, and even gratuities included in the CTC. And what is difference between the CTC and gross salary? In gross salary, mainly incentive is not covered because it is flexible, it is variable component. But LTA is there, bonus is also considered in the gross salary of the annual. What is difference between gross salary and net salary? Gross salary is the monthly or yearly salary of an individual before any deduction are made from it, and net salary is after deduction, whatever salary you receive or we receive. Sometimes net salary is also called as cash in hand or take home salary or a salary in hand salary. Apart from this, if we want to better understand the difference between all these salary components, we have to look at this salary slip. In this salary slip, major components are basic pay, HRA, allowances and the deduction format. In this deduction format, what are the deduction, how it get deducted, we will see afterwards. But this salary slip is for the CTC of 5 lakhs. If we calculate CTC of 5 lakh and if we go through this salary slip, then you can see the difference. It is not a CTC of 5 we are not getting 5 lakhs directly in our hand. In this salary slip, 36,500 is a gross salary per month. For per year salary, we have to calculate this with multiplying it by 12 as well as adding bonus and LTA in it. Similarly, to go for the CTC, incentive will be added, other variable components will be added. That is why when we discuss about the net salary के बारे में हम लोग जब भी सोचते हैं तो नेट सैलरी कभी भी आपके ग्रॉस सैलरी से नीचे ही रहेगा, आपके सीटीसी से कम ही रहेगा. ये हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने हमको चीट किया ऐसा हमको लगता है. फैक्ट इज नॉट दैट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जब भी सैलरी स्लिप या आपके स्प्लिटअप दिए रहते उसमें ये सारे कंपोनेंट क्लियरली लिखे रहते हैं और हमारा अंडरस्टैंडिंग
मेजर अंडरस्टैंडिंग कहां पे गड़बड़ हो जाता है? पीएफ के टाइम पे। पीएफ हमको लगता है कि हमारा पीएफ एम्प्लॉयर वो दो साइड से पकड़ रहा है, वो पकड़ेगा क्योंकि एक साइड में आपका डिडक्शन आपके सैलरी से होगा, तो आपका एज अ सैलरी, एज अ नेट सैलरी उसने आपको दिया हुआ है, और बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी स्लिप एम्प्लॉयर इज गोइंग टू एड एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ पीएफ जो आपने 12% दिया है और बेसिक उतना ही एम्प्लॉयर उसमें डालने वाला है। तो क्या हो जाएगा, वो दोनों उसके सीटीसी में आ जाएगा। यहां पे जो वेरिएबल कंपोनेंट्स है उसमें क्या होता है, वेरिएबल कंपोनेंट में हमको मेनली कंसर्न कहां पे आ रहा है, जहां पे ग्रेच्युइटी है। ग्रेच्युइटी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। पीएफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ईएसआईसी आपको अगर एप्लीकेबल है तो ईएसआईसी बेनिफिट्स में कवर करते हैं और वो डिडक्शन में भी जाता है, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा। जब भी आप ये समझो, आप जब भी बार्गेनिंग करो तो बार्गेनिंग शुड बी ऑन द कैश इन हैंड, सो दैट आपको ऐसा कभी नहीं लगे कि मेरे साथ एम्प्लॉयर ने चीटिंग किया हुआ है, मैं फंस गया हूं। ऐसा होता नहीं है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं है। पीएफ दो बार, एक बार आपके सैलरी में ऐड होता है, वो एम्प्लॉयर देता है, पीएफ एडिशनल वो देता है, तो दो बार वो सीटीसी में पकड़ेगा। ग्रेच्युइटी वो कभी 5 साल के बाद देगा, लेकिन देगा, वो सीटीसी में पकड़ता है। बोनस आपको हर साल देगा, वो सीटीसी में आएगा। एलटीए वो आपको हर साल में देता है। मेडिकल एम्बर्समेंट आपको हर साल में करता है, तो वो हर सीटीसी में आएगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी में या नेट सैलरी में नहीं आएगा। इसलिए आपको बार्गेनिंग करते वक्त बेस्ट नेट सैलरी पे करो, और पीएफ है कि नहीं, ये फैसिलिटी ईएसआई का फैसिलिटी है कि नहीं, उतना ही समझ लेना, ठीक है। अभी बोनस को समझते हैं। बोनस या इंसेंटिव कंपनी कब देता है? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है या आप अच्छे परफॉर्म करते हो, तभी बोनस देता है कंपनी। इट इज ऑल्सो नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रोग्रेस और आपका परफॉर्मेंस, राइट। अभी डिडक्शन जो भी है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्शन में मैंने क्या बताया, मैंडेटरी डिडक्शन 3 ही है। एक है प्रोविडेंट फंड जो 12% आपके बेसिक सैलरी से कटेगा। दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स जो साल में आपको 2500 रुपीज देना है। उसके लिए क्या करते हैं, 11 महीना 200 रुपए से कटेगा, और इन द मंथ ऑफ फरवरी 300 रुपए कटेगा, और टोटल मिला के 2500 आपको प्रोफेशनल टैक्स देना है साल का। अगर आप इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल है तो ही आपका इनकम टैक्स कटेगा। अगर आप ईएसआईसी के लिए एप्लीकेबल है तो ही आपके सैलरी से ईएसआईसी का जो भी डिडक्शन है वो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। सो मेन कंपोनेंट कौन से है? प्रोविडेंट फंड एंड प्रोफेशनल टैक्स। आज के जमाने में 12% भी लोग बेसिक जब तक 15,000 का है तब तक ही काट रहे, उसके ऊपर जाने के बाद ही 1800 रुपए फिक्स करके काट रहे, तो आपके सैलरी से 1800 प्लस 200 तो कंप्लीटली 2000 ही कट होने वाला है, अनलेस अदरवाइज कंपनी डिसाइड्स कि हमको ज्यादा पीएफ काटना है या एम्प्लॉय एग्री ऑन दैट। अदरवाइज आपके सैलरी में से, ग्रॉस सैलरी में से आपको पकड़ के चलना है कि 2000 कट होने वाला है, तो दो ग्रॉस सैलरी माइनस 2000 करेंगे तो आपको यू विल रिसीव द नेट सैलरी। अभी ए एरिया जो है ग्रेच्युइटी का, मोस्ट ऑफ टाइम मुझे जो भी कंसर्न पर्सन आते हैं कि सर हमें ग्रेच्युइटी समझ में नहीं आता है, तो ग्रेच्युइटी कब मिलेगा आपको? जैसे दिवाली का बोनस हर साल में एक बार मिलता है, एलटी आपको साल में एक ही बार मिलेगा। सिमिलरली ग्रेच्युइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट आर दोज रूल्स? फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कंप्लीट total 5 years in the same organization, that is current organization. Unless otherwise you complete 5 years in the current organization, you are not eligible for the gratuity. यहां पे थोड़े एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशंस क्या है? अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, अगर आप जॉब पे हो और डेथ हो जाती है वो पीरियड में, तो आपको जो भी ग्रेच्युटी बनेगा उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। डिसेबल हो गए, आप काम करने के लायक नहीं रहे बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, देन आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है। ग्रेच्युटी का सिंपल फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रेच्युटी, लेकिन मेन रूल क्या है? आपको ऊपर वाले 3 में से एक को आप इलिजिबल होना, मिनिमम 5 साल का आपका एक कंपनी में जॉब कंटिन्यूस होना चाहिए। कैलकुलेट कैसे हो जाता है? फॉर्मूला ऐसा है, ग्रेच्युटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू बेसिक प्लस डीए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपको डीए नहीं मिलेगा, तो आपका बेसिक
इनटू 15 हाफ मंथ का सैलरी डिवाइड बाय 26, क्योंकि हमको 26 मंथ डेज का पेमेंट दिया जाता है। अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से आपका बेसिक सैलरी अगर 20,000 है, आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए, तो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा 57,692। आप अपने हिसाब से ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक मैंने सारी चीजें रिलेटेड टू सैलरी स्ट्रक्चर क्लियर कर ली है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि आपका जो भी ग्रेचुइटी है ना, इसमें आप जितने साल एक कंपनी में काम करोगे, जितना ज्यादा पेमेंट होगा, उतना आपका ज्यादा ग्रेचुइटी बढ़ेगा। ये क्यों है? आपका ग्रेचुइटी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे होता है। तो आपको ये करना है कि मैक्सिमम सैलरी जहां पे जाए वहां पे ग्रेचुइटी के लिए अप्लाई कर दो। अदरवाइज ग्रेचुइटी के लिए अप्लाई मत करो, उसको कंटिन्यू होने दो। वो कंपनी में सारे आपका ग्रेचुइटी वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, before ending this video, I would like to thank you and request you to like this video, subscribe to my channel and share these videos to your friends, and don't forget to click on bell icon so that you can receive the notification for the recent videos. Thank you.